Good morning, students. Yesterday we had started the chapter 22 Democracy and Government. You have learned that what is democracy means the rule of people, where people elect their representatives, means their ministers who govern the country. So we will proceed today with the same chapter. The next topic, goals of democracy. First of all, let's see the learning outcomes of today's topic. Learning outcomes. After the completion of today's topic, dear students, you will be able to know the various goals of democracy. You will get into the meaning of different goals of democracy and you will comprehend the preamble of Indian Constitution. Goals of democracy. Goals means objectives, उद्देश्य. डेमोक्रेसी के क्या गोल्स हैं, क्या इसका उद्देश्य है. लेट्स सी वन बाय वन. द फर्स्ट इज टू सॉल्व ऑल प्रॉब्लम्स थ्रू डिस्कशन, परसुएशन एंड कंप्रोमाइज़. कंट्री की सारी प्रॉब्लम्स को आपस में डिस्कस करके, एक दूसरे को मना के एंड कंप्रोमाइज़ से हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे. And there is no place for coercion and violence in democracy. coercion means threatening force, किसी को डरा धमका के किसी चीज़ को मनाना. तो ये चीज़ जो है डेमोक्रेसी में नहीं है. नेक्स्ट इज डेमोक्रेसी स्टैंड्स फॉर ग्रेजुअल चेंजेस इन सोसाइटी इन द सोशल, इकोनॉमिक एंड पोलिटिकल फील्ड्स. डेमोक्रेसी में सोशल, इकोनॉमिक एंड पोलिटिकल फील्ड्स में धीरे धीरे सोसाइटी में चेंजेस आते हैं. नेक्स्ट इज डेमोक्रेसी मेंटेन्स हार्मनी एंड बैलेंस इन द सोसाइटी. जिस कंट्री में डेमोक्रेसी रूल होता है वहाँ जो सोसाइटी में बैलेंस बना रहता है एंड लोग मिलजुल के रहते हैं. इट ऑल्सो एम्स टू रूट आउट अथॉरिटेरियनिज्म एंड डिक्टेटरशिप. डिक्टेटरशिप एंड अथॉरिटेरियनिज्म मीनिंग इज सेम, दैट इज़ तानाशाही, एक पर्सन का रूल होना. तो डेमोक्रेसी जो है it abolish all these things. Democracy inculcates the habit of obeying the rules and regulations of the state. डेमोक्रेसी लोगों में ये हैबिट डालती है कि उन्होंने रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है कंट्री के उनको फॉलो करना है. इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग पीस. इट endeavors to solve the problems of poverty, hunger, illiteracy and unemployment. ये कंट्री में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, पावर्टी की, इलिटरेसी की या अनएम्प्लॉयमेंट, जॉब्स नहीं है लोगों के पास, इन सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए बेहद कोशिश करती है हमारी गवर्नमेंट. फाइनली मीन्स प्रॉबेबली द अल्टीमेट गोल ऑफ डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी का अल्टीमेट मेन गोल क्या है? दैट इज़ द वेल बीइंग ऑफ ईच इंडिविजुअल एज अ डिस्टिंक्ट एंड सिग्निफिकेंट ह्यूमन बीइंग. डेमोक्रेसी का अल्टीमेट गोल क्या है कि हर एक इंडिविजुअल जो है, हर एक व्यक्ति जो है इंडिया का, उसको अपनी एक पहचान मिले एंड उसको एक इम्पॉर्टेंट पर्सन माना जाए एंड उसके भले के लिए ही डेमोक्रेसी जो है रूल्स बनाती है, उसके भले के लिए ही काम करती है. नेक्स्ट वी हैव in your book the preamble of Indian Constitution. You know, Indian Constitution is the book, this is the book of rules and regulations for the government and for the country, how to govern the country. So preamble is important part of Indian Constitution. It is given in the beginning just like an introduction. So what is this about? This is the preamble of Indian Constitution. How does it begin? With the words, we the people of India. हम इंडिया के लोग having solemnly resolved to constitute India. Constitute means बनाना. Solemnly means पक्के तरीके से इंडिया को बनाने के लिए, कैसा बनाने के लिए? into a sovereign, socialist, secular, democratic republic. Sovereign means the country which is totally free, which is not under any other country's control. Socialist means जनता की भलाई के लिए जो काम करती है. Secular means
The country where there are different religions and no any religion is powerful, means people are free to adopt any religion. Democratic means people's rule, where the rule of the country is in the hands of people, where people elect their representatives. Republic means the head of the country is elected by people directly or indirectly. जैसे इंडिया में हेड ऑफ द कंट्री है प्रेसिडेंट, एंड प्रेसिडेंट इज़ इलेक्टेड बाय इनडायरेक्टली बाय द पीपल. कैसे प्रेसिडेंट इलेक्ट होता है हमारे कंट्री का? जो लोगों ने मिनिस्टर्स इलेक्ट किए होते हैं, स्टेट मिनिस्टर्स एंड सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्टर्स, वो सारे मिलके प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं. सो प्रेसिडेंट इज़ इलेक्टेड इनडायरेक्टली बाय द पीपल ऑफ इंडिया. सो दिस इज़ कॉल्ड रिपब्लिक. तो कैसी कंट्री होनी चाहिए हमारी? सॉवरन, जो टोटली फ्री हो. सोशलिस्ट, जो लोगों की भलाई के लिए काम करे. सेकुलर, वेयर वी कैन अडॉप्ट एनी रिलीजन. डेमोक्रेटिक मीन्स where the rule is in the hands of people. Republic, where people are choosing their head, and to secure to all its citizens, और इंडिया के सारे सिटीजन्स को सिक्योरिटी प्रदान करना है. कैसे सिक्योर करना है? जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, न्याय मिले सबको. लिबर्टी, हर एक को फ्रीडम हो किसकी? थॉट, अपने विचारों की एक्सप्रेशन अपने आप को एक्सप्रेस करने की. किसी भी तरह के वो बिलीफ रख सकते हैं, किसी भी रिलीजन को वो पूज सकते हैं. इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल. हर एक को समानता का अधिकार है, हर एक को बराबर अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, एंड हर एक को अधिकार है कि वो अपने आप को प्रमोट कर सके अमंग द अदर पीपल. फ्रेटर्निटी मीन्स फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड, भाईचारे की भावना. एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड द इंटीग्रिटी ऑफ नेशन. भाईचारे की भावना से हर एक को अपनी डिग्निटी को एश्योर करने का अधिकार है, एंड दिस इज़ द इंटीग्रेशन ऑफ नेशन, कि लोगों में, इसके कारण लोगों में यूनिटी एंड अखंडता बनी रहती है. इन आवर कॉन्स्टिट्यूट असेंबली दिस 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution. ये लास्ट पैराग्राफ में हम मानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, वो 26 नवंबर 1949 को वो डिक्लेयर करते हैं कि हम इस डेट को अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट करते हैं एंड इसको इम्प्लीमेंट करने का आदेश देते हैं. दिस वाज द प्रेम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. द नेक्स्ट टॉपिक इज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी. Representative democracy, from the name it depicts that it is the democracy where the people are electing their representatives, and those representatives govern the country on the behalf of the people. So this is called the representative democracy. यहाँ पे लोग जो हैं अपने मिनिस्टर्स को चुनते हैं, एंड वो मिनिस्टर्स लोगों के बिहाफ पे कंट्री पे रूल करते हैं, कंट्री को चलाते हैं. Like in the villages, for example, in the villages, panch and sarpanches are elected by the people of the villages, and in the cities, like in our Ludhiana city, you must have seen municipal councillors elections, है ना. लुधियाना इज़ डिवाइडेड इनटू डिफरेंट वार्ड्स. हर एक वार्ड का अपना एक काउंसलर होता है, एंड दैट काउंसलर इज़ इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ दैट वार्ड. इन सिमिलर वे, MLA, you must have listened MLA word. MLA इज़ फुल फॉर्म इज़ मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज. तो वो भी लोगों के द्वारा ही चुने जाते हैं. मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मीन्स MP. सो दीज ऑल आर इलेक्टेड बाय द पीपल डायरेक्टली. लोग वोट करते हैं एंड इनको अपने मिनिस्टर्स को चुनते हैं. नाउ आई गिव यू वन टास्क. यू आस्क फ्रॉम योर पेरेंट्स who is your MLA, who is MP of Ludhiana, and who is the councillor of your ward. Must ask from your parents. You should have this knowledge.
Let us revise what have we learned today. We have learned different goals of democracy, that all the problems are solved by discussion and persuasion. In democracy, all the people have equal rights and there is no any type of dictatorship. People obey the rules and regulations, and democracy helps in maintaining peace. And we have learnt about the preamble of Indian Constitution. Then you have also come to know what is representative democracy means, when the people elect their representatives and those representatives work in the country on the behalf of their people. So this is called representative democracy. That's all about the day. Thank you.